नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एम लक्ष्मीकांत किताब का ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका इंडियन पॉलिटी का किताब है। और इस किताब से हम लोग एमसीक्यू से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, चैप्टर बाय चैप्टर। और ये किताब का यूपीएससी और जो है आपका नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे आपका चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 16 पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि आपका पार्ट नंबर 2 का होगा, ठीक है, चैप्टर 16। तो देखिए आपके सामने चैप्टर नंबर 16 है, ठीक है, और चैप्टर नंबर 16 और इसमें हमारा सिर्फ क्वेश्चन आंसर होगा, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, विदाउट एक्सप्लेनेशन होगा। और पार्ट नंबर 2 सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का चैप्टर नंबर 16 इमरजेंसी प्रोविजन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो आपका पार्ट नंबर 2 आ गया, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, चैप्टर नंबर 16 इमरजेंसी प्रोविजन, आपका पार्ट नंबर 2 का आखिरी चैप्टर, ठीक है। तो देखिए आपके सामने इमरजेंसी प्रोविजन चैप्टर नंबर 16 पार्ट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन इधर है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो 1 का सी, बोथ 1 and 2 आर राइट। तो नो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी कैन बी मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अनलेस द यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ कैबिनेट रैंक हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर रिकमेंडेड टू हिम इन राइटिंग दैट सच a proclamation should be issued। दूसरा आपका द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मस्ट इशू a proclamation of revocation of emergency any time that the Lok Sabha passes resolution disapproving the proclamation of its continuance, ठीक है। तो आपका 1 और 2 सही है, ठीक है। आपका 2 है, consider the following statement if the financial emergency has been declared by the president under the article 360 then its proclamation। तो 2 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, both 1 and 2 आर राइट, ठीक है। तो if the financial emergency has been declared by the president under the article 360 then its proclamation may be revoked or varied by a subsequent proclamation shall cease to operate at the expiration of 2 months unless before the expiration of that period it has been approved by the resolution of both the house of parliament। तो आपका 3 है, consider the following statement। तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन में सी, both 1 and 2 are right। तो while a proclamation, while a proclamation of emergency is in operation, article 359 of the constitution of India does not come into operation till an order is issued by the president specifying the rights which are suspended। While a proclamation of emergency is in operation, article 358 makes a restriction imposed by article 19 non-existent against the state। दोनों आपका सही है। 4 आपका which of the following are not necessarily the consequence of the proclamation of the president rule in India in the state। तो 4 का राइट आंसर भी 1 and 3 are not necessarily, ठीक है। तो डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड डिसोल्यूशन ऑफ द लोकल बॉडीज, ठीक है। बाकी आपका पहला से दूसरा सही है, द रिमूवल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड टेक ओवर ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन बाय द यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। क्वेश्चन 5 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो 1 2 3 4 5 आपका पांचों सही है। तो proclamation of emergency under article 352 of the constitution of India requires written communication of the union cabinet to the president of the to that effect, and it can be issued for the whole of India or part thereof lapse if not approved by the both house of parliament within a month lapses, ठीक है। तो requires a resolution approving the proclamation passed by both house of parliament only by a majority of the total membership of each house and not less than 2/3 member present and voting। 5 आपका once approved by parliament can last for 6 months, ठीक है। तो once approved by parliament can last for 6 months, ठीक है। कुछ आपका 6 है, in case of declaration of financial emergency। तो 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, the president may give such direction to the state such as may be deemed necessary for economic recovery and salaries of official may be temporarily reduced। तो 7 आपका है, law made by the parliament। तो law made by the parliament with respect to any matter enumerated in a state list during a proclamation of a national emergency will cease to have effect in which of the following condition। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, on the expiration of 6 months after the proclamation of emergency has ceased to operate, ठीक है। तो law made by the parliament with respect to any matter enumerated in the state list during a proclamation of an emergency, this emergency will cease to have effect in which of the following condition on the expiration of 6 months after the proclamation of emergency has ceased to operate। क्वेश्चन 8 आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन बी आपका 2 and 3 राइट। तो द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट
The Supreme Court judgment in SR Bombay versus Union of India has been interpreted to mean that governor can dismiss a council of ministers of the chief minister. So when the legislative assembly has expressed its want of confidence in the council of ministers and when measures of the council of ministers has been defeated on the floor of the principal assembly. ठीक है, कोई आपका 9 है assertion और ईजेनार है, तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन में डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, तो ये आपका गलत है, तो assertion ये है एन इमिनेंट डेंजर ऑफ वॉर और एक्सटर्नल aggression is not enough for the proclamation of energy emergency और रीजन आर आपका सही है, तो ये आपका गलत है. The proclamation of emergency shall cease to operate at the expiration of 1 month unless approved by both the House of Parliament, तो ये आपका सही है. तो an imminent danger of wars or external aggression is not enough for the proclamation of emergency गलत है, और आपका आर सही है. The proclamation of emergency shall cease to operate at the expiration of 1 month unless approved by the both House of the Parliament. क्वेश्चन का 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट वन, तो 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, द प्रेसिडेंट प्रोक्लेम्स इमरजेंसी ऑन द बेसिस ऑफ एनी ग्राउंड मेंशन्ड इन आर्टिकल 352 और द पॉसिबिलिटी देयरऑफ. ठीक है, कोई बात 14 नंबर है इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेस हिज पावर एज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ए पार्टिकुलर स्टेट, देन तो 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पार्लियामेंट अज्यूम्स द पावर टू legislate on the subject in the state list. If the president of India exercises his power as provided under article 356 of the constitution in respect of a particular state, then the parliament assumes the power to legislate on the subject in the state list. 12 है when a proclamation, तो when a proclamation of emergency is issued by the president under article 352 of the constitution of India, then 12 का ऑप्शन सी, द फ्रीडम्स अंडर आर्टिकल 19 आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड एंड अदर फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट दोस अंडर आर्टिकल 20 and 21 कैन बी सस्पेंडेड बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट. 13 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इन ए स्टेट अंडर आर्टिकल 356 कैन कंटिन्यू बियॉन्ड 1 year if, तो ऑप्शन नंबर सी, द इलेक्शन कमीशन सर्टिफाइज दैट इट इज डिफिकल्ट टू होल्ड इलेक्शन टू द असेंबली. 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी डन अंडर कंडीशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो ऑप्शन नंबर सी 3 and 4. ठीक है, आपका 3 और 4 कोड सही है. तो रिडक्शन इन द सैलरीज ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, रिजर्वेशन ऑफ मनी बिल ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. ठीक है, तो ये आपका दोनों सही है. क्वेश्चन आपका 15 है व्हेन ए स्टेट फेल्स टू इम्प्लीमेंट, तो व्हेन ए स्टेट फेल्स टू इम्प्लीमेंट द एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन गिवन बाय द यूनियन अंडर आर्टिकल 256 ऑफ द काउंसिल ऑफ इंडिया, तो 15 करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी, द प्रेसिडेंट मे प्रिज्यूम दैट कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट हैज फेल्ड. तो व्हेन ए स्टेट फेल्स टू इम्प्लीमेंट द एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन गिवन बाय द यूनियन अंडर आर्टिकल 256 ऑफ द काउंसिल ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट मे प्रिज्यूम दैट कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट हैज फेल्ड. 16 नंबर क्वेश्चन है आपका प्रोक्लेमेशन, द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी मेड ऑन द रिटन एडवाइस ऑफ द कैबिनेट ओनली, दिस प्रोविजन हैज बीन एडेड, तो 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है आफ्टर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. तो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी मेड ऑन द रिटन एडवाइस ऑफ द कैबिनेट ओनली, दिस प्रोविजन हैज बीन एडेड आफ्टर द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. तो जब 17 है द प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356, द प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356 रिमेन वैलिड इन ए स्टेट फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ, तो 17 का ऑप्शन नंबर सी 3 years. तो 18 नंबर है proclamation of emergency under article 352 when Lok Sabha stand dissolved has to be approved by, तो 18 का ऑप्शन में राज्य सभा and then it will continue till the reconstruction of new Lok Sabha which must approve it within 30 days of its first sitting. तो proclamation of emergency under article 352 when Lok Sabha stand dissolved has to be approved by Rajya Sabha and then it will continue till the reconstruction of new Lok Sabha which must approve it within 30 days of its first sitting. 19 में क्वेश्चन है असर्शन ओरिजिन है, तो असर्शन नहीं करा, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी कैन बी इशूड बाय द प्रेसिडेंट इफ देयर इज इमिनेंट डेंजर ऑफ वार और एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन, ये नाम आपका है. द प्रेसिडेंट कैन सस्पेंडेड द एनफोर्समेंट ऑफ ऑल द फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इमरजेंसी. तो 19 का ऑप्शन में सी सही है, ए इज टू, द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी कैन बी इशूड बाय द प्रेसिडेंट इफ देयर इज इमिनेंट danger of war or external aggression or armed rebellion, the president can suspend
द कन्फोर्समेंट ऑफ ऑल द फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इमरजेंसी गलत है। 20 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटोमेटिक कंसिक्वेंस ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ एनर्जी इमरजेंसी। तो 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है सस्पेंशन ऑफ द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट एक्सेप्ट दोज कन्फर्ड बाय द आर्टिकल 20 एंड 21। ठीक है, तो ये आपका नहीं, सही नहीं है, ऑटोमेटिक कॉन्सिक्वेंस नहीं है। ठीक है, बाकी आपका सब ऑटोमेटिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी है। एक्सटेंशन ऑफ यूनियन एजुकेटिव पावर टू द इशू ऑफ डायरेक्शंस टू एनी स्टेट एज टू मैनर्स इन विच इट्स एजुकेटिव पावर हैज टू बी एक्सरसाइज। एक्सटेंशन ऑफ द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू द मेकिंग ऑफ legislation in regard to items of the state list and suspension of article 19। ये आपका तीनों सही है, आपका पहला गलत है। 21 है consider the following statement parliament may make law on the subject enumerated in a state list only if to the, तो 21 का राइट आंसर है ऑप्शन बी और 2 only is correct, तो 2 alone is correct। ठीक है, तो पार्लियामेंट में make law on a subject enumerated in a state list only if the proclamation of emergency under article 352 is in operation। 32 है, sorry 22 है the judgment in the SR Bommai versus Union of India case pertained broadly to which article of the Constitution of India। तो 22 का ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 356। तो जजमेंट इन द SR Bommai versus Union of India case pertained broadly to which article of the Constitution of India article 356। 23 है क्वेश्चन नंबर consider the following statement। तो consider the following statement in respect to provisions as to financial emergency। तो 23 का ऑप्शन नंबर है only one is right। ठीक है, तो ये proclamation of emergency, तो ये proclamation of financial emergency has to be laid before each house of parliament। ठीक है, आपका दूसरा गलत है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखा आज का वीडियो। तो आज के बस इतना ही, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हमारा जो है पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कल हमारा पार्ट नंबर 3 आपका स्टार्ट होगा और कल हमारा चैप्टर नंबर 17 पढ़ेंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट के बारे में जो भी आपका क्वेश्चन होगा एमसीक्यू प्रैक्टिस है। ठीक है, तो आज के बस इतना ही, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।